السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، یہودیوں نے ہمارے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں قتل کرنا چاہا۔ امی اور دادا کی وفات کے بعد ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، دل غمگین رہتا تھا، کسی سے بات نہ کرتے تھے۔ دادا کی وفات کے بعد ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے ہی ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگرانی میں پالا۔ وہ اپنے لڑکوں سے زیادہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے تھے۔ ایک بار مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضرت ابو طالب ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کعبہ شریف کے پاس پہنچے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک کعبہ شریف سے لگا کر اللہ سے دعا کی تو اچانک آسمان پر بادل چھانے لگے اور پھر اتنی تیز بارش ہوئی کہ مکہ کی گلیوں میں پانی بہنے لگا۔ حضرت ابو طالب بہت زیادہ غریب تھے، گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے تاکہ گھر میں روٹی کا انتظام ہو سکے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا کر واپس لوٹ رہے تھے۔ امی اور دادا کی وفات کا غم اتنا زیادہ تھا کہ چہرے پر اس کے آثار نظر آتے تھے۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، بکریوں کو ہکالتے ہوئے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پیروں میں چپل بھی نہیں تھی، صرف ایک تہبند باندھ رکھا تھا۔ تیز کڑی دھوپ تھی، گرمی کی وجہ سے چہرہ لال پڑ گیا تھا اور اسی حالت میں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے ہونے کا بہت احساس رہتا تھا کہ نہ میری ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ کوئی بھائی بہن ہے۔ یہ غم ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ایسے سوار رہتا تھا کہ آپ اکثر اکیلے خاموش بیٹھے رہتے تھے، محلوں کے بچوں کے ساتھ بھی نہ کھیلتے۔ حضرت ابو طالب ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خیال رکھتے تھے۔ جب بھی کھانا کھانے بیٹھتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ جب ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہوئی تو ایک دن ابو طالب نے شام شہر کی طرف ہجرت کے لیے جانا چاہا۔ حضرت ابو طالب ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میں شام شہر کاروبار کے لیے جانا چاہتا ہوں، اسی لیے تم اپنا خیال رکھنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے چچا، آپ کو تو پتہ ہے نا کہ یہ مکہ میں میرا آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، آپ کے بغیر کیسا رہوں گا، اسی لیے آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے لیجئے۔ بھتیجے کی ضد اور شوق کو دیکھ کر حضرت ابو طالب نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، چلو تم بھی تیار ہو جاؤ۔ اور پھر ابو طالب ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر شام شہر کی طرف چل دیے۔ اس قافلے میں 100 سے زیادہ آدمی تھے۔ یہ قافلہ چلتے چلتے جب شام شہر کے قریب پہنچا تو ان قافلے والوں کا گزر عیسائیوں کے ایک بہت بڑے عالم و جادوگر کے پاس سے ہوا جس کا نام بہار تھا۔ اس بہار جادوگر نے شام کی طرف جانے والے راستے ہی میں ایک طرف اپنا چھوٹا سا گھر بنا رکھا تھا اور اسی میں کچھ خادموں کے ساتھ رہتا تھا، کیونکہ اس نے پڑھ رکھا تھا کہ ایک دن اسی راستے سے اس دنیا کے آخری نبی گزریں گے۔ اسی نبی کے انتظار میں بہار جادوگر نے
उस रास्ते पर अपना घर बनवा रखा था और रोज़ सुबह वो छत पर चढ़कर मक्का की तरफ से आने वाले काफिलों को बहुत गौर से देखता था। जिस दिन हज़रत अबू तालिब उस काफिले के साथ हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बुहार जादूगर के घर के पास से गुजरे तो उस जादूगर ने दूर ही से इस काफिले को देखकर पहचान लिया कि ये वही काफिला है जिसमें आखिरी नबी होंगे, क्योंकि उसने देखा कि रास्ते का हर पेड़ वो पत्थर उस काफिले वालों को सजदा कर रहा है। इसीलिए वो समझ गया कि ज़रूर इस काफिले में वो नबी है। वो जादूगर जल्दी से छत से नीचे उतरा और अपने खादिमों को बुलवा कर कहा कि आज इन काफिले वालों के लिए खाना तैयार करो, मैं इनकी दावत करूँगा। इतनी देर में वो काफिला आ पहुँचा जिसमें हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के साथ थे। ये काफिला उस बुहार जादूगर के घर के पास से ही एक बड़े पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। बुहार जादूगर अपने घर से निकला और इस काफिले वालों को आकर बहुत गौर से देखने लगा। फिर अचानक उसकी नज़र हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपने चाचा अबू तालिब के पास खामोश बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही बुहार जादूगर पहचान गया और फिर उसने काफिले वालों से कहा कि आज दोपहर को तुम सब मेरे घर दावत पर आ जाना। ये सुनकर काफिले वालों को बहुत हैरानी हुई कि हम तो अक्सर इस रास्ते से गुजरते रहते हैं, इस जादूगर ने आज तक हमसे कभी बात तक ना की, तो आज इसे क्या हो गया है कि ये हम सब की दावत कर रहा है। तो काफिले वालों से एक आदमी ने पूछा कि ऐ जादूगर, आज तक तो आपने कभी हमारी दावत नहीं की, तो फिर आज क्यों हमारी दावत कर रहे हैं। तो उस जादूगर ने बात को टालते हुए कहा कि तुम हमारे मेहमान हो और मेहमान की इज़्ज़त करना हमारे मज़हब में है, इसीलिए हमने तुम सब की दावत की है। उस जादूगर ने किसी को कुछ भी ना बताया। दोपहर का वक्त हो चुका था, खाना तैयार था, काफिले वाले इधर उधर बिखर चुके थे। तो बुहार जादूगर ने अपने एक खादिम से कहा कि सारे काफिले वालों को जमा करो और उनके लिए खाना लगवाओ। खादिम ने आवाज़ देकर सारे काफिले वालों को जमा किया। सब उसी बड़े पेड़ के नीचे आकर बैठ गए और सबके लिए खाना लगवा दिया गया। बुहार जादूगर बराबर नज़र दौड़ाकर इधर उधर देख रहा था, लेकिन उसे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र नहीं आ रहे थे। तो उसने काफ़ी देर बाद काफिले वालों से पूछा कि तुम में से कोई बचा तो नहीं है। तो लोगों ने जवाब दिया कि नहीं, हमारे सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन हाँ एक बच्चा है, वो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं आया है। उस जादूगर ने पूछा कि वो बच्चा कहाँ है। लोगों ने बताया कि वो हमारे ऊँट चराने गया है। बुहार जादूगर ने कहा कि तुम्हारा बुरा हो, अरे मैंने उसी बच्चे की वजह से तुम सबकी दावत की है, जल्दी से जाओ और उस बच्चे को बुलवा कर लाओ। हज़रत अबू तालिब ने एक आदमी को भेजा कि जाओ और मेरे भतीजे को बुलवा लाओ। जब हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिले की तरफ आ रहे थे तो बुहार जादूगर दूर ही से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गौर से देख रहा था। उसने देखा कि एक बादल ने हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया कर रखा है, जिसकी वजह से हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल भी धूप नहीं लग रही है और हर तरफ तेज़ धूप फैली हुई है। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए उस पेड़ के पास पहुँचे तो देखा कि पेड़ के साए में
कहीं भी जगह नहीं बची थी। सारे काफिले वाले पेड़ के साए में बैठे हुए थे। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साए में कहीं भी जगह ना मिली तो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धूप ही में बैठ गए। जैसे ही हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धूप में बैठे कि तभी अचानक पेड़ की कुछ टहनियाँ खुद ब खुद मुड़ने लगी और उनके साया धीरे धीरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आने लगा। ये सब देखकर बुहार जादूगर बहुत हैरान हुआ और पूछने लगा कि इस बच्चे का मालिक कौन है। हज़रत अबू तालिब ने कहा कि मैं हूँ। बुहार जादूगर ने पूछा कि तुम इसके कौन हो। हज़रत अबू तालिब ने जवाब दिया कि मैं इसका बाप हूँ। जादूगर ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा इल्म कहता है इस बच्चे का बाप मर चुका है। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा कि हाँ, तुम सच कह रहे हो, मैं इसका चचा हूँ। उसके बाप की वफ़ात इसकी पैदाइश से पहले ही हो गई थी। फिर बुहार जादूगर ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलवाया और आपकी पीठ से कपड़ा हटाकर देखा तो मोहर-ए-नबुव्वत चमक रही थी। ये देख बुहार जादूगर की ज़ुबान से एक आह निकली और उसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ते हुए कहा कि ऐ लोगों, तुम्हें पता भी है कि ये बच्चा कौन है? मैंने अपनी सारी ज़िंदगी इसी बच्चे के इंतज़ार में गुजार दी, क्योंकि मैंने पढ़ रखा था कि एक दिन ये बच्चा इसी रास्ते से गुज़रेगा। ऐ लोगों, ये बच्चा आने वाली नस्लों का नबी है। इसके पास आसमान से फरिश्ते आएंगे और इससे आगे चलकर नबी बनाया जाएगा। ये सुनकर काफिले वाले बहुत हैरान हुए और पूछने लगे कि ऐ जादूगर, तुम्हें कैसे मालूम हुआ ये बच्चा हमारे ही काफिले में है? बुहार जादूगर ने कहा कि जिस वक्त तुम आ रहे थे तो मैंने देखा कि रास्ते का हर पेड़ वो पत्थर इस बच्चे को सजदा कर रहा है। ये देख मैं समझ गया कि ज़रूर इसी काफिले में वो नबी है जिसका मैं बरसों से इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके आगे का वाक़या इंशाअल्लाह बहुत जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। वाक़या पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। हम मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।